today's topic name is plasma arc machining, and we will see the detailed construction, working, setup, then controlling parameters, technical parameters, advantages, applications. Okay, that's all the things about plasma arc machining, and this is also one of the type of advanced machining. Okay, now this is the lecture number 5. We will see about this topic. At the end of this topic, students will able to describe the working principle, disadvantages, advantages, then applications, and selection of plasma arc machining method, means PAM method, for given job with justification. Okay, contents for today's lecture. We will see introduction about the PAM, plasma arc machining, then working principle of plasma arc machining, after that setup, then dielectric fluid and their function. Okay, after that characteristic of dielectric fluid, then tool used in plasma arc machining and requirement of that tool material. Okay, second last process parameter and process output characteristic. Okay, and finally advantage, disadvantages, and applications of plasma arc machining. Now let's start with the introduction of plasma arc machining. देखते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग क्या है, उसकी थोड़ी जानकारी, बेसिक जानकारी लेते हैं. ओके, अबाउट इंट्रोडक्शन. द प्लाज्मा आर्क मशीनिंग प्रोसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडस्ट्रीज in 1964 as a method of bringing better control to the arc welding process in lower current ranges. Okay, after that plasma arc machining employs a high velocity jet of high temperature gas to melt and displace material in its path. देखो, सिंपल फॉर द अंडरस्टैंडिंग. इसमें क्या है, जैसे ही प्लाज्मा आर्क, जो आर्क हम क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स हीट जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, गैस भी अवेलेबल है उस फ्लेम में, तो वी आर मेल्टिंग द मेटल मीन्स, और उसके साथ हम उस हीट को यूज़ करते हुए जो पाथ में आने वाला मटेरियल है, उस टूल पाथ में आने वाला मटेरियल वो कट कर रहे हैं. ओके, दैट मीन्स प्लाज्मा आर्क मशीनिंग. टुडे प्लाज्मा रिटेन्स द ओरिजिनल एडवांटेजेस it brought to industry by providing an advanced level of control and accuracy. Now, working principle of plasma arc machining method. Let's see. You can see the diagram for plasma arc machining method. There is the arrangement given in the diagram. Plasma arc. Gases are heated and charged to the plasma state. Yes, first of all we have to learn that thing, exactly what is meant by plasma. Okay, plasma state is superheated and electrically ionized gases at approximately 5000 degrees Celsius. Getting or not? Hello students. Yes, once again I am repeating that thing. Plasma state is superheated and so I am talking about working principle of plasma arc machining. Okay, here you can see hello. These gases are directly on the workpiece, directed on the workpiece in the form of high velocity stream. Yes, I already talk about that कि जैसे ही हम प्लाज्मा को जनरेट कर रहे हैं 5000 डिग्री सेल्सियस तक, तो अब हमें वो स्ट्रीम, गैस की जो स्ट्रीम होगी, उसको हमें डायरेक्टेड ऑन द वर्कपीस, मीन्स वर्कपीस पे आप इमेज में देख सकते हो. आफ्टर जनरेशन ऑफ प्लाज्मा, जहाँ पे हमें मटेरियल कट करना है, तो वो सीधा वर्कपीस पे हम हीट को जनरेट करके मटेरियल रिमूव कर रहे हैं. दैट मीन्स हाई वेलोसिटी स्ट्रीम को यूज़ करते हुए मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं. ओके,
सेटअप में अगर देखा जाए तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग मेथड में एक तो फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा गन, सेकंड पावर सप्लाई, देन कूलिंग मैकेनिज्म एंड वर्कपीस. ओके, जस्ट रिमेंबर दीज 4. दैट मीन्स MSBT के सिलेबस में जो आपको ये इंक्लूड किया गया है, तो MSBT एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, सेटअप में भी पूछा जाएगा, या फिर पूरा होल प्रोसेस आपको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है. वो 6 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है. ठीक है. और वैसे भी अभी कोविड-19 के फेजेस में अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा. सो बी प्रिपेयर्ड विथ MCQs. ओके, आफ्टर एंड ऑफ द यूनिट, ओवरऑल यूनिट, वी विल टेक अ टेस्ट. हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे और पूरा रिकॉलिंग ओवरऑल मेथड्स, जितने भी एडवांस मशीनिंग मेथड्स फर्स्ट यूनिट में इंक्लूडेड है, वो भी हम देखने वाले हैं. ठीक है. तो ये सेटअप में मेजर कंपोनेंट्स प्लाज्मा गन, पावर सप्लाई, कूलिंग मैकेनिज्म एंड वर्कपीस. लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्लाज्मा गन. Plasma gun consists of a tungsten electrode fitted in the chamber. Okay, the electrode is given negative polarity and nozzle of the gun is given positive polarity. A strong arc is established between the two terminals, anode and cathode. Here is also anode and cathode. Okay, there is a collision between the molecules of the gas and electrons of the established arc. देखो क्या हो रहा है प्लाज्मा जनरेशन में, ये प्रोसेस शॉर्ट में दिया गया है. देन गैस मॉलिक्यूल्स गेट आयोनाइज्ड एंड प्लाज्मा स्टेट इज फॉर्म. फाइनल स्टेज जो है प्लाज्मा स्टेट का है. प्लाज्मा इज डायरेक्टेड टू द वर्क पीस विथ हाई वेलोसिटी, एंड देन फाइनली जो प्लाज्मा हम जनरेट कर रहे हैं उसको हम वर्क पीस पे डायरेक्ट कर रहे हैं सीधा फॉर द मशीनिंग प्रोसेस. सेकेंड मेजर कंपोनेंट या फिर पार्ट जो देखा जाए इस मेथड में, तो पावर सप्लाई एंड टर्मिनल्स. यस, पावर सप्लाई कैसा होगा, तो पावर सप्लाई DC पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं हम, यूज टू डेवलप 2 टर्मिनल्स इन प्लाज्मा गन. ओके, देन टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज इंसर्टेड टू द गन एंड मेड कैथोड, एंड नोजल ऑफ द गन इज मेड एनोड. लिसन केयरफुली. Tungsten electrode is inserted to the gun and made as a cathode, and a nozzle of the gun is as a anode. Then heavy potential difference is applied across the electrode to develop plasma state of gases. Okay, in this way this plasma gun is operating with the help of power supply and cathode and anode terminals, with the help of cathode and anode terminals. Sorry. Then heat is produced from the jet of plasma is sufficient to rise the workpiece temperature above its melting point, and the high velocity gas stream effectively blows the molten metal away. That means cutting operation हमें मिल रहा है यहाँ पे with the help of plasma. After about the cooling mechanism, a provision is made for the circulating of water around the torch. Yes, for that torch we are providing a cooling arrangement. Okay, torch, so that the electrode and nozzle both remains water cooled. Okay, means cooling arrangement भी बहुत ज़रूरी है. डायग्राम में अगर आपने देखा होगा तो ये हीट को डिसिपेट करने के लिए कूलिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट अबाउट वर्क पीस. नेक्स्ट सेटअप प्रोसेस में अगर देखते हैं तो वर्क पीस, हमें टूल एंड वर्क पीस के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो वर्क पीस ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स कैन बी प्रोसेस बाय प्लाज्मा आर्क मशीनिंग प्रोसेस. जो अलग अलग तरह के मटेरियल्स हम इससे कट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, स्टेनलेस स्टील एंड कार्बन एंड एलॉय स्टील. दीज आर द मटेरियल्स फॉर as a workpiece. Okay, we can work on that type of metals. The electrode is connected to negative terminal of the DC power supply and therefore act as a cathode, and nozzle is made anode by connecting to the positive terminal of the power supply. Okay, through the suitable resistor we are using there. This resistor limits the current through the nozzle about 50 ampere. Okay,
देन वर्क पीस टू बी मशीन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई. देखो वर्क पीस को अगर देखा जाए तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा एंड द एनोड एंड कैथोड आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर. ठीक है, तो ये हो गया वर्क पीस के बारे में. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सेट 1. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज फॉर द प्रोफाइल कटिंग ऑफ अ फ्लैट प्लेट? देन योर आंसर इज प्लाज्मा आर्क मशीन. Yes, we can cut different profiles with the help of plasma arc machining methods. Now, blank position, blank is given there. Dash dash is used to develop two terminals in the plasma gun. क्या कर रहे हैं हम use? Power supply, DC supply use कर रहे हैं. ठीक है. A strong arc is established between the two terminals, anode and cathode. Yes, is that right? Yes, true. Strong arc is established between the two terminals, anode and cathode. ये आंसर हमारा ट्रू होगा. नाउ कंट्रोलिंग पैरामीटर्स के बारे में अगर स्टडी करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के तो फर्स्ट वन इज स्टैंड ऑफ डिस्टेंस. यस, व्हाट इज मीन बाय स्टैंड ऑफ डिस्टेंस? इंक्रीज इन द स्टैंड ऑफ डिस्टेंस रिड्यूसेस द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन एंड हेंस नैरो द कट विड्थ एंड एट द बॉटम. ओके, द स्टैंड ऑफ डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ मेटल टू कट. देखो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस उस मटेरियल के थिकनेस पे डिपेंड करता है. द टिपिकल वैल्यू ऑफ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस वैरीज फ्रॉम 5 mm to 10 mm. ओके, सो दिस इज द स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंड ऑफ डिस्टेंस. जो हम मटेरियल कट कर रहे हैं, इंक्रीज जैसे इंक्रीज करेंगे वो डिस्टेंस तो रिड्यूस होगा आपका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन. ठीक है, वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ मटेरियल पे. देन cutting speed, increase in the cutting speed reduces the depth of immersion of plasma jet leading to the narrowing of cutting in the lower portion. Okay, decrease in cutting speed will causes the opening of the cut at the bottom of workpiece. For example, the typical cutting speed of aluminium at 80 kilowatt power. Let's consider how much? 80 kilowatt per hour and 4 mm orifice diameter is 8 mm per second. That is the your cutting speed requirement. Gas flow rate is directly proportional to the thickness of material. देखो गैस फ्लो रेट कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ मटेरियल एंड द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर गैस डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कट एंड इकोनॉमिक्स मीन्स मनी. ओके, दीज आर द कंट्रोलिंग पैरामीटर्स वी आर स्टडिंग इन प्लाज्मा आर्क मशीनिंग. ओके, नाउ प्रोसेस पैरामीटर्स की अगर बात करते हैं तो लेट्स सी प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस पैरामीटर्स. व्हाट टाइप ऑफ पैरामीटर्स हमें कंसिडर करने होंगे या फिर ज़रूरी है स्टडी करना. ओके, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स भी है कुछ. ठीक है, तो रफनेस ऑफ द बॉटम सरफेस, RA वैल्यू ऑफ सरफेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कितना वैल्यू होगा, मतलब उस वैल्यू पे भी हमारी कटिंग प्रोसेस डिपेंड करती है. द शेप ऑफ ऑब्टेन्ड सरफेस. ओके, कैसा शेप हमें मिलने वाला है. देन थिकनेस ऑफ हीट अफेक्टेड जोन. ओके, तो वो थिकनेस पे भी हमें देखना है, हाउ मच थिकनेस इज रिक्वायर्ड. कटिंग प्रिसीजन लेवल को भी चेक करना है. प्रोडक्टिविटी कैसे होगा, मीन्स एग्जैक्ट प्रोडक्शन किस रेट से चल रहा है. ओके, द वियर ऑफ द नोजल. येस, देयर इज़ अ हीट, मोर हीट इज जनरेटिंग इन द प्लाज्मा गन and that's why the wear rate of the nozzle also we have to study. Then cutting width अगर देखते हैं तो अभी हमने देखा तो वो width के हिसाब से हमें प्लाज्मा गन का आउटपुट लेना होगा. ओके, तो कटिंग width ये पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, नाउ फाइनली एडवांटेजेस अगर देखते हैं इस प्रोसेस के बारे में. इट गिव्स फास्टर प्रोडक्शन रेट. Very hard and brittle metals can be machined. Okay, then small cavities can be machined with good dimension accuracy. The process is finding ever increasing applications because it gives the highest temperature available for the many practical sources. बहुत सारे materials को हम easily cut कर सकते हैं with the help of plasma arc machining method. यहाँ पे हमें स्मॉल कैविटीज़ जैसे एक डायमेंशनल एक्यूरेसी भी मिल रही है, ये एक एडवांटेज है. हार्ड और ब्रिटल मटेरियल को भी हम मशीन कर रहे हैं एंड प्रोडक्शन रेट भी अच्छा है. ओके, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग. नाउ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट अबाउट द डिसएडवांटेजेस. इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, मीन्स
स्टार्टिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा. इट इज़ अनइकोनॉमिकल फॉर द बिगर कैविटीज़ टू बी मशीन. अगर बहुत सारी कैविटीज़ बड़ी है तो वहाँ पे थोड़ा अनइकोनॉमिकल प्रोसेस है. इनर्ट गैस कंजम्पशन इज़ हाई. इनर्ट गैस कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है. प्रोटेक्शन ऑफ नॉइज़ इज़ नेसेसरी. यस, प्लाज्मा गन से जब प्लाज्मा जनरेट कर रहे हैं हम 5000 डिग्री सेल्सियस तक, तो वहाँ पे हमें नॉइज़ क्रिएट होने वाला है. नोज़ल से जो प्लाज्मा में निकलने वाला है तो उसकी वजह से एक कटिंग साउंड क्रिएट होगा, जो उसको रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो फिर कुछ प्रोटेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देन हीट अफेक्टेड जोन इज़ मोर, देयर इज़ अ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, सो दैट्स वाई हीट अफेक्टेड जोन भी है यहाँ पे ज़्यादा. ओके. फाइनली एप्लीकेशंस आफ्टर एडवांटेज डिसएडवांटेज. लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग इन ट्यूब मिल ऑपरेशंस. यस, ट्यूब मिल ऑपरेशंस में यूज़ कर रहे हैं. वेल्डिंग ऑफ क्रायोजेनिक एरोस्पेस एंड हाई टेम्परेचर करोजन रेजिस्टेंस अलॉयज़ पे हम यूज़ कर रहे हैं प्लाज्मा आर्क मशीन. न्यूक्लियर सबमरीन पाइप सिस्टम्स में यूज़ कर रहे हैं हम प्लाज्मा आर्क. देन वेल्डिंग स्टील रॉकेट मोटर केस में भी हम यूज़ कर रहे हैं. देन वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील में यूज़ कर रहे हैं. वेल्डिंग टिटेनियम प्लेट्स अप टू द 8 mm थिकनेस तक हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग से कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज़ द एप्लीकेशंस. These are the applications. Okay, now let's start with the question set number 2. Just overlook over that. In PAM, increase in the cutting speed reduces the depth of immersion of the plasma jet. Okay. Then second question अगर देखते हैं तो anode and cathode are separated by insulator. Yeah, we are using insulators for the separation of anode and cathode in plasma arc machining. Third question is gas flow is डैश टू द थिकनेस ऑफ मटेरियल. क्या है? तो आंसर में अगर देखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ मटेरियल. ओके, आपका आंसर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एट हाई टेम्परेचर भी नहीं है, इन्वर्सली भी नहीं है. ओके, तो आंसर बी होगा थर्ड क्वेश्चन के लिए. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस में पोस्ट करने वाला हूँ. पूरा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी, फ़िलहाल जो वीडियो चल रहे हैं तो इन दो सब्जेक्ट के बारे में है. ठीक है. कीप वॉचिंग फॉर द वीडियोज़ फॉर यूनिट 1 नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस. ओके, थैंक यू.